السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 18 جون 2023 28 ذی-القعدہ 1444 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ شمالی ہندوستان میں شدید گرمی نے تباہی مچا رکھی ہے۔ اتر پردیش اور بہار میں جون کی جان لیوا گرمی کا عذاب دیکھا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے بلیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے 3 دنوں میں 54 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ پٹنہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں گرمی سے 35 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس کے علاوہ بہار کے دیگر اضلاع میں بھی 9 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ چلچلاتی گرمی اور گرمی کی لہر کی وجہ سے اتر پردیش اور بہار میں گزشتہ 3 دنوں میں ہیٹ اسٹروک سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش، بہار سمیت پورا شمالی ہندوستان ان دنوں گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش اور بہار کے کئی اضلاع میں ہیٹ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بہار کے بنکا، جمونی، جہاں آباد، کھگڑیہ، نالندہ، نوئیڈا، پٹنہ، سمستی پور، شیخ پورے میں اگلے 24 گھنٹوں تک شدید گرمی کی لہر کی وارننگ دی ہے۔ اس خبرنامے کو ایم ایس ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ میں 5th کلاس پڑھ کر ایم ایس حفظ اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ مسٹیکس کے لیے ڈفرینٹ کلر کے ہائی لائٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایم ایس حفظ اکیڈمی میں میموری ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حفظ کرایا جاتا ہے۔ میں نے ایم ایس حفظ اکیڈمی سے 20 مہینے میں حفظ مکمل کیا۔ Please click the following link in description for more details. راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے راجستھان فری موبائل یوجنا 2023 کے تحت ریاست کی خواتین کو مفت موبائل فون فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے یہ اسکیم گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حکام کے مطابق اس سے ریاست کی تقریباً 1 کروڑ 33 لاکھ اہل خواتین کو براہ راست فائدہ پہنچے گا، جبکہ بی جے پی لیڈر نمیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ گہلوت حکومت یہ اعلان کرنے کے لیے دیر سے بیدار ہوئی ہے، ایسے وقت میں جب دنیا کی سب سے سستی انٹرنیٹ خدمات ہندوستان میں خواتین حاصل کر رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان سوربھیم چترویدی نے کہا کہ یہ اسکیم ترقی کی ایک نئی کہانی لکھے گی۔ راجستھان میں کانگریس حکومت کی طرف سے بہت ساری مہتواکانکشی اسکیمیں تیار کی جا رہی ہے، جن سے خواتین کو براہ راست مدد ملے گی۔ وہ اب 500 روپے میں گیس سلنڈر حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت کی طرف سے مفت ادویات اور صحت کے فوائد بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ موبائل وہ اس طرح کی اسکیموں کے بارے میں اپڈیٹ دے رہے ہیں اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندوتوا نظریہ سازی وی ڈی ساورکر کے پوتے رنجیت ساورکر نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ پر زور دیا اور کہا کہ صورتحال کے پیش نظر مسلم کمیونٹی کا معاشی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ہندوؤں پر زور دیا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہی تجارت اور کاروبار کریں اور مسلمانوں کی دکانات اور اداروں سے خریداری کرنا ترک کر دیں۔ وائی شیوک ہندو راشٹر مہا اتسو کے افتتاح کے موقع پر گوا کے پنجی میں مخاطب کرتے ہوئے رنجیت ساورکر نے ان تاثرات اور احساسات کا اظہار کیا۔ گوا میں منعقدہ اس مہا اتسو کے موقع پر انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ رنجیت ساورکر نے مزید بتایا کہ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا تجارتی بائیکاٹ کریں اور ہندوؤں کے ساتھ ہی تجارت اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھیں۔ مہا اتسو کا اہتمام ہندو جن جاگرتی سمیتی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ رنجیت نے ہندوؤں کے رہنماؤں اور پجاریوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے حامیوں اور پیروں کو ہدایت دیں کہ وہ صرف جھٹکے کا گوشت ہی استعمال کریں تاکہ ہماری رقم مسلمان قصابوں کو نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مہم چلائی جانی چاہیے۔ مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کے تعلق سے ایک تشویشناک معاملہ حل ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ فارم ہاؤس سے خریدے گئے بکروں، گھروں میں پلے ہوئے بکروں یا دیگر ذرائع سے لائے گئے بکروں کی انٹری دیونار میں کرانا لازمی قرار دیا گیا تھا، اور اس ضابطے کے بہانے ممبئی میونسپل کارپوریشن کے محکمہ مارکیٹ نے کئی جگہ سے متعدد بکروں کو ضبط بھی کیا تھا۔ اس مسئلے کو مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس کی مشترکہ میٹنگ میں حل کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شنڈے فڈنوس حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور فارم ہاؤسوں سے اور گھروں وغیرہ کے پلے ہوئے بکروں کو دیونار سلاٹر ہاؤس میں انٹری کروانے اور پاس حاصل کرنے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ اس اعلان سے مسلمانوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی صدارت اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس کی موجودگی میں سہیادری گیسٹ ہاؤس میں عید الاضحیٰ کے لیے ایک میٹنگ منعقد ہوئی تھی۔ میٹنگ میں ممبئی سٹی ضلع کے سرپرست وزیر دیپک کیسرکر، دیہی ترقی کے وزیر گریشن مہاجن، وزیر زراعت عبدالستار، سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے ابو عاصم اعظمی، ایم ایل اے رئیس شیخ، مہاراشٹر کے چیف سیکرٹری منوج اور دوسروں نے شرکت کی۔ گجرات کے مسلم اکثریتی آبادی والے ضلع اور شہر جوناگڑھ میں ماجیواڑی گیٹ کے قریب موجود درگاہ ہٹائے جانے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جوناگڑھ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے درگاہ کو نوٹس بھیجے جانے کے بعد پتھراؤ اور آتش زنی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اس میں ایک ڈپٹی ایس پی سمیت تقریباً 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔
पुलिस ने इस मामले में अब 180 अफराद को हिरासत में लिया है। सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मांझेवाड़ा गेट के आसपास के इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई है। वाजरे के जूनागढ़ के नवाब की रियासत से वाबस्ता मांझेवाड़ी गेट के करीब एक दरगाह है जो तवील अरसे से यहाँ मौजूद है। मुकामी अफराद का दावा है कि आज़ादी के वक्त से ही ये दरगाह मौजूद रही है। इसके ताल्लुक से 5 साल कबल भी तनाज़ा हुआ था, लेकिन बात नहीं बढ़ी थी। ताज़ा मामले में 5 दिन पहले जूनागढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस दरगाह के कागजात तलब किए थे। इसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दरगाह पर नोटिस चस्पा कर दिया। गुज़िश्ता शाम दरगाह पर एक बड़ा हुजूम इस इत्तला पर जमा हुआ कि दरगाह की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। जब पुलिस इन लोगों को हटाने पहुंची तो हुजूम मुश्तइल हो गया, मगर पुलिस ने सूरत-ए-हाल को संभाल लिया और भीड़ को मुंतशिर कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दरगाह के सामने खड़े करके मुस्लिम नौजवानों की बेदर्दी से पिटाई की जा रही है। दावा है कि जूनागढ़ पुलिस ने पथराव करने वालों को इस तरह से सबक सिखाया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल लेक्चर का पहला कलीदी खुतबा देते हुए ये दावा किया कि अगर नेताजी मुल्क की आज़ादी के वक्त मौजूद होते तो मुल्क तकसीम ही नहीं होता। इनके अंदर गांधी और नेहरू को चैलेंज करने की हिम्मत थी और वो मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सबसे ज़्यादा काबिल कबूल शख्सियत थे। खुद जिन्ना कह चुके थे कि इन्हें सिर्फ नेताजी की लीडरशिप कबूल है। ऐसे में हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर नेताजी मौजूद होते तो हिंदुस्तान की किस्मत कुछ और होती। अजीत डोभाल ने नेताजी को दूरअंदेशी लीडर भी करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने इनकी सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं किया बल्कि सिर्फ इख्तिलाफात का मुजाहरा करते रहे, जिसकी वजह से इन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत ने एक सख्त इकदाम उठाते हुए रियासत में सीबीआई के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अब रियासत में किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को तमिलनाडु हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। वज़ीर आला स्टालिन की क़यादत वाली हुकूमत ने सीबीआई से इस आम इत्तेफाक को वापस ले लिया है जिसने सीबीआई को बगैर इजाज़त तमिलनाडु में जांच का इख्तियार दिया था। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में कुछ दीगर रियासतों ने भी सीबीआई से आम इत्तेफाक को वापस लिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, मगरबी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम और तेलंगाना वगैरह शामिल हैं। सीबीआई से आम इत्तेफाक वापस लेना अब अपोजिशन पार्टियों की हुकूमत वाली रियासतों का एक ताकतवर सियासी कदम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेघालय में भी सीबीआई के लिए हुकूमत की इजाज़त के बगैर दाखिला ममनू है। तमिलनाडु समेत अब मजमूई तौर पर 10 ऐसी रियासतें हैं जिसने सीबीआई से आम इत्तेफाक वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी लीडरों के आशीर्वाद से बनी फिल्म आदि पुरुष के कुछ मकालमों और सीन पर सख्त एतराज़ किया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बराह रास्त हमला करते हुए इसे हिंदू मजहब की तौहीन करार दिया है। राज्यसभा मेंबर संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी ने फिल्म आदि पुरुष बनाकर लॉर्ड पुरुषोत्तम और मां सीता के साथ हनुमान जी की तौहीन की है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म बीजेपी के कई वज़राए आला और वज़रा के आशीर्वाद से बनी है। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम हेमंता बसवा शर्मा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म में कई काबिल एतराज़ डायलॉग है जो कि इंतहाई शर्मनाक है। इसके बाद भी बीजेपी लीडर फिल्म की तशहीर कर रहे हैं। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी लीडरों को मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। मशहूर दानिश्वर और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने लॉ कमीशन के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असर मुशावरत पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों की चिढ़ बना दी गई है। ऐसे में वो इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि मुसलमान इससे चिढ़ना छोड़ दें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के किसी एक मजहब का मसला नहीं बल्कि इसका ताल्लुक तमाम मज़ाहिब से है। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस पर जज्बाती रद्दअमल का हरगिज़ इजहार ना करें, बल्कि वो अपनी तरफ से इज्तिमाई तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये इख्तियार दें कि वो लॉ कमीशन के सामने इनकी नुमाइंदगी करें और मजबूती के साथ अपने दलाइल पेश करें। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी ने जिस तरह इस मसले पर बरवक्त मिल्लत इस्लामिया को मशवरा दिया है वो इसकी तायीद करते हैं। साथ ही इसका भी इजाफा करना चाहते हैं कि हमारे दरमियान से कोई भी शख्स टीवी चैनलों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजू पर मुबाहसा में ना जाए। तशद्दुद-ज़दा मणिपुर में सूरत-ए-हाल बदतर होती जा रही है। दबे लफ्ज़ों में अब बीजेपी के लीडरान भी अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। एक ट्वीट में स्वामी ने रियासत में सदर राज नाफिज करने की हिमायत की और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी की मणिपुर हुकूमत को बर्खास्त किया जाए और आइन के आर्टिकल 356 के तहत सदर राज नाफिज किया जाए और अमित शाह को वजारत खेल भेजा जाए।
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने महकमा पुलिस और जीएचएमसी के आला अहदेदारों से बात करते हुए कुर्बानी के लिए मुंतकिल किए जाने वाले जानवरों को पकड़ने पर इन्हें गौशाला के बजाय जीएचएमसी की जानिब से बनाए गए खुसूसी मराकिज़ मुंतकिल करने के लिए नुमाइंदगी की। जीएचएमसी की जानिब से 6 जोनल कमिश्नर्स के हुदूद में 300 जानवरों को रखने के लिए आर्जी सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें एलबी नगर जोन के लिए फतेहुल्ला गुड़ा, खैरताबाद एनिमल केयर सेंटर, अंबरपेट, पटेल नगर, श्रीलिंगमपल्ली में एनिमल केयर सेंटर, एनआर रेलवे स्टेशन फेज 7 के BHBH कॉलोनी कोकटपल्ली जोन, गजुला रामामम सिकंदराबाद जोन में माधापुर और चार मीनार जोन में काटेदन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर में मैलार देवपल्ली में ये सेंटर्स कायम किए गए हैं। सदर मजलिस ने जीएचएमसी अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इन मराकिज़ पर 24 घंटे वेटरनरी डॉक्टर्स की सहूलत फराहम करें। कल माधापुर डीसीपी के इलाके में 2 मुकामात पर मवेशियों को पकड़ा गया था। असदुद्दीन अवैसी ने डीसीपी माधापुर शिल्पा वली से बातचीत करके नौजवानों को रिहा करवाया। असदुद्दीन अवैसी ने जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार से फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि ईद उल अजहा के सिलसिले में जानवरों को कुर्बानी के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसे में चंद फ़िरका परस्त अनासिर शरंगेज़ी कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से जानवरों को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने जीएचएमसी कमिश्नर से ख्वाहिश की कि वो पकड़े गए जानवरों को जीएचएमसी के मराकिज़ मुंतकिल करने को यकीनी बनाए, जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद इन जानवरों को कुर्बानी के लिए सर्टिफिकेट दे सकें। सदर मजलिस ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि चंद पुलिस अहदेदार जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर रहे हैं, जो क़वायद की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने डीजीपी अंजनी कुमार से ख्वाहिश की कि वो पुलिस अहदेदारों को हिदायत दें कि शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए चौकस रहें और फ़िरका परस्त अनासिर पर नज़र रखें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया को मशवरा दिया है कि वो नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि तरक्की के ज़लज़ले में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने काफ़ी खिदमत अंजाम दी और कोरोना वायरस की वबा के दौर में फ़ौज ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। सदर जमहूरिया हिंद ने आज हैदराबाद के डोंडेगल में एयरफोर्स अकेडमी में मुनक़िद कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया और कैडेट्स से सलामी ली। इस मौके पर अपने मुख्तसर से खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि लड़ाका जेट पायलटों में ज़्यादा ख़वातीन को देखकर खुशी होती है। उन्होंने कैडेट्स और इनके वालिदैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र तारक रामा राव ने कहा है कि रियासत के तमाम सहाफ़ियों को मकानात की अराज़ी तकसीम की जाएगी। उन्होंने आज अपने दौरे वरंगल के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर तेलंगाना प्रेस अकेडमी के सदर अल्लम नारायणा के हमरा वरंगल के सहाफ़ियों की तंजीम के नुमाइंदों ने वज़ीर KTR से मुलाकात की। सहाफ़ियों ने वज़ीर KT रामाराव से मकानात की अराज़ी के साथ दीगर मसाइल भी पेश किए। इस मौके पर KTR ने कहा कि हुकूमत रियासत में काम करने वाले तमाम अहल सहाफ़ियों को मकानात के लिए अराज़ी फराहम करने पर पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि मुमकिना अराज़ी के सिलसिले में कोई भी सहाफ़ी को तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के सहाफ़ियों को मुमकिना अराज़ी से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ ही अल्लम नारायणा के साथ बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि JNJ सोसाइटी के अलावा हर एक सहाफ़ी को मकानात की अराज़ी फराहम करने के सिलसिले में बहुत जल्द इक़दाम किए जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 20 जून को मुनक़िद होने वाले तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना तासीस की 10 साला तक़रीब के सिलसिले में 20 जून को यौम तालीम तेलंगाना मनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुलतवी इम्तिहानात का नज़रसानी शुदा टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सदर BRS व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जुलाई के तीसरे हफ्ते में रियासत के 119 असेंबली हलकों में से तकरीबन 80 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। पार्टी के आला ज़राए ने बताया कि BRS कायद को ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट मौसूल हुई है और इन 80 असेंबली हलकों के लिए इनका इंतखाब इसी रिपोर्ट पर मबनी होगा। तकरीबन 2/3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके चीफ मिनिस्टर बहुत से मसाइल को हल करने का मंसूबा रखते हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक के इलाके में आज रात कुछ हल्की सी कशीदगी फैल गई, क्योंकि जायदाद के मसले पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक वकील ने मुबैना तौर पर राइफल से फायरिंग कर दी। हफ्ते की रात देर गए मीर चौक पुलिस को मंडी मिरालम के करीब मगर की बोली में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम की इत्तला मिली। मुलविस फरीकीन की शिनाख्त मसूद अली खान, एक वकील मुर्तज़ा अली खान, हशमत उन्नीसा बेगम, मोहम्मद खलीकुर रहमान कुरैशी उर्फ अरफात, मोहम्मद अनीकुर रहमान कुरैशी, इब्राहिम अली खान सुल्ताना और ख़ानदान के दीगर अफराद के तौर पर हुई है। तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब ग्रुपों ने लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान वकील मसूद अली ने मुबैना तौर पर हरीफ ग्रुपों पर अपनी राइफल से 2 राउंड फायरिंग कर दिए। वाक़े से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। दोनों ग्रुपों ने पथराव किया।
جس سے کشیدگی میں شدت پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں متاثرہ علاقے میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ میر چوک پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر دونوں گروپوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ تصادم مگر کی بولی میرالم منڈی حیدرآباد میں جاری جائیداد کے تنازع سے ہوا تھا۔ رات گئے مسعود علی خان کے گروپ نے متنازع املاک کو تالے لگا دینے کی کوشش کی، جبکہ مخالف گروپ نے زبردستی تالے توڑ دیے۔ یہی وہ وقت تھا جب مسعود علی خان نے اپنے رہائش گاہ سے اپنی لائسنس یافتہ رائفل برآمد کی اور ہوا میں 2 گولیاں چلا دیں۔ ہر سال گاؤں رکشکوں کی جانب سے عید الاضحیٰ یا بقرعید کے دنوں میں شہر حیدرآباد میں مویشیوں کے تاجروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ان پر حملے کرتے ہیں اور ذبح کے لیے لے جانے والے جانوروں کی گاڑیوں کو روک دیتے ہیں، جس سے عید کی تہوار انتہائی حساس بنائی جاتی ہے، جبکہ بقرعید کی عید بالکل قریب میں واقع ہے۔ اس بار مجلس بچاؤ تحریک پارٹی نے تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ ایم بی ڈی کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے حیدرآباد اور مضافات میں گاؤں رکشکوں کے گروپوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ گاڑیوں کو غیر قانونی طور پر روکنے کی کوشش کریں۔ اب وہ ٹرکوں کو روکنے والے گاؤں رکشکوں سے نمٹنے کے لیے رات کو سڑک پر گھوم رہے ہیں۔ مختلف مقامات سے جاری کردہ 2 ویڈیوز میں امجد اللہ خان خالد نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ انہیں گائے کے محافظ گروپوں کی وجہ سے ہو رہی کسی بھی پریشانی کے بارے میں مطلع کریں۔ میں شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے والی سڑک پر ہوں۔ پولیس کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دے۔ اگر کسی بھی طرح سے گائے کی نقل و حمل یا بچڑوں کو غیر قانونی طور پر لے جایا جاتا ہے تو پولیس کو روکنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور مقدمات درج کرنے چاہیے۔